middle term and rational term of binomial, right? In the expansion of x plus a to the power n, it depends on n, what is the middle term, right? If n is even, right, then only one middle term is possible. And that will be nothing but t n plus 2 divided by 2, right? Term is n plus 2 by 2, so this will be t of n by 2 plus 1, or we know this is cn by 2. Middle term of any binomial x plus a to the power n. In this x plus a to the power n, you have to divide this x plus a to the power m, this n as even or odd. If n is even, then only one middle term is possible, and the middle term will be t n plus 2 by 2, or divided by 2, you are getting n by 2 plus 1 term, and from this we are getting nc, and into x to the power n by 2 into a to the power n by 2. The power distribution will be same. Power distribution will be same for x and a. So if I'm asking x plus y को मैंने like I'm changing as a plus 2b to the power 10. What is the middle term of this expansion? You can write down in chat, right? This 10 is even number, right? So 10 by 2 is 5, right? So t 10 by 2 plus 1 means t6. Sixth term is the middle term. अगर ध्यान से देखो, सिक्स टर्म मिडिल टर्म क्यों आ रहा है? इफ आई एम राइटिंग दिस एज 10c0, 10c1, 10c2, 10c3, 10c4, 10c5, 10c6, 10c7, 10c8, 10c9, 10c10. You can look 10c0 and 10c10, both are same, right? इसके बाजू वाले को देखते हैं, 10c1 and 10c9 will be same, right? एक एक दोनों तरफ से मैंने रिमूव किया, राइट? 10c2 and 10c8 को मैंने रिमूव कर दिया, राइट? 10c3 and 10c7 को मैंने रिमूव कर दिया, राइट? 10c4 and 10c6 को मैंने रिमूव कर दिया. अब ध्यान से देख सकते हो, आपके पास एक ही टर्म बच रहा है, दैट्स 10c5. 10c5 का बचना मेरे को ये बता जाता है कि इफ आई स्टार्ट विद 0, तो 0 इज द फर्स्ट टर्म, 1 2 3 4 5. 5 आने का मतलब है 0 से हमने स्टार्ट किया है, तो सिक्स्थ टर्म विल बी द मिडिल टर्म फॉर एक्सपेंशन ऑन पावर 10, right? But in the case of x plus a to the power n, n is odd, right? If n is odd, then there would be two middle term possible, right? दो middle term होंगे जो possible होंगे हमारे पास. The first will be t n plus 1 by 2, and second would be, right, the next to this one, this t
n plus 1 by 2 plus 1, राइट. दो मिडिल टर्म पॉसिबल होंगे, राइट. अकॉर्डिंगली वी हैव टू सी फॉर n इज इवन और ऑड. जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ, x plus a to the power, let's say 7. So this is 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6, 7c7. Look, 7c0, ये दो एक्सट्रीम मैंने हटा दिए, right. Going for the next one, 7c1, 766, ये दोनों मैंने रिमूव कर डाले. 7c2, 7c5, ये दोनों मैंने रिमूव कर डाले. ध्यान से देखो, लास्ट में जो आपके पास जो बच रहे हैं, दिस इज टू टर्म्स आर लेफ्ट ओवर, राइट. दीज टू, 7c3 एंड 7c4. ऑड में मेरे पास दो टर्म बच रहे हैं, इवन में मेरे पास सिर्फ एक टर्म था. अब ऑड में जो टर्म अगर बचे हैं, यहाँ पर मैं नॉट से स्टार्ट किया हूँ, 7c नॉट से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो वी कैन सी दिस कि एक टर्म है 7c3, दूसरा टर्म है 7c4. 7c3, तो हाउ यू आर गेटिंग दिस, 7 plus 1 by 2 and 7 minus 1 by 2, राइट. तो एक बार r की वैल्यू जो है वो है मेरे पास 3, एक बार r की वैल्यू जो मेरे पास है वो 4 है. सो टर्म में अगर मैं बात करूं तो वो है 3 plus 1 टर्म, टर्म में बात करूं तो वो है 4 plus 1 टर्म, राइट. सो प्लीज नोट इट डाउन फॉर n is odd. If they will ask the coefficient, then only we have to write down NCR. But if they will ask about the middle term, you have to write down the combination term as well as the x and e terms. Like, hope everyone noted down. Done. Right, this is for odd, right? And this was for even. So now question on this is first 1 minus x cubed by 2 to the power 14, find middle term. Second, 3y minus y square by 5 to the power 9, find middle term. Third, दो कर लेते हैं, do it fast. इवन के लिए एक बार आप जल्दी से इसको चेक कर सकते हो. इवन के लिए ये फंडा था आपके पास, एंड इवन के लिए यू आर गेटिंग ये फॉर्मूला है. 10 के लिए हमने यहाँ पर निकाल के रखा है, एंड एन इवन के लिए यू आर गेटिंग दिस फॉर्मूला, राइट. एंड ऑड के लिए दिस इज द फॉर्मूला. टर्म दो टर्म है मेरे पास, राइट. नाउ अप्लाई दीज टू फॉर्मूलाज ऑन दिस.
In the first question, n is equal to 14. So the term will be Tn by 2, 7 plus 1 means 8th term. And we can write this as 8th term, n is equal to 14, to 14 C7, right? Minus x cubed by 2 to the power 7. 1 to the power 7 is 1 only, right? Similarly, for this, we'll get two middle term, right? This will be n plus 1 by second term and n plus 1 by 2 plus 1th term. ये दो पॉसिबल होंगे हमारे पास, right? So this is 10 by 2 fifth term की बात हो रही है, right? T fifth and T sixth. For T fifth term, we can write NC4. Fifth means 4 plus 1. NC4 3y to the power 9 minus 4 into minus y square by 5 to the power 4. This is for first one, right? For T sixth term, sixth means T5 plus 1 is equal to 9C5 3y to the power 9 minus 5 minus y square by 5 to the power 5. Hope everyone is getting this, first and second. Fifth term, then you have to write fifth term or sixth term, then you have to write 4 plus 1. Last class में भी आपने किया होगा, right? बेसिक में हम लोगों ने किया था, क्योंकि बाइनोमियल जो है वो NC नॉट से शुरू होता है, इसलिए हमें TR प्लस 1th टर्म लिखना कंफर्टेबल होता है. अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूं तो 100% वी हैव टू थिंक दिस इज 4 प्लस 1. सिक्स्थ टर्म की बात कर रहा हूं तो दिस मस्ट बी obviously 5 plus 1. So R is equal to 5 and accordingly you have to use the formulas. Right, for first and second one. Hope everyone is getting this. Now, so this is about the middle term. Only you have to see what is the value of R, and accordingly you have to use the value of R. Second, what I was saying, you have to find how many rational terms are there in the expansion. So how many rational terms are possible in expansion? So for that, we have to use the basic formula TR plus 1, that is NCR, right? A to the power n minus R, B to the power, or you can write Y to the power n minus R, और x to the power r and vice versa. जैसा भी एक्सपेंशन दिया हुआ है, y plus x to the power n है या x plus y to the power n है. So what I'm giving you, x और y को इस बार मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ कुछ रैशनल इरेशनल टर्म्स के लिए. So I'm writing a to the power 1 by p and b to the power 1 by q. to the power n. ये एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, राइट? इसमें अगर मुझे TR प्लस 1 टर्म लेना है तो दैट विल बी NCR A to the power 1 by P to the power n minus R, B to the power 1 by Q to the power R, राइट? अब मेरे को ये चाहिए कि लाइक हाउ टू गेट द रैशनल टर्म्स. तो रैशनल टर्म्स के लिए वी हैव टू सी कि R की वैल्यूज क्या हो सकती है. इसमें देखना पड़ेगा नंबर्स हमारे पास क्या गिवन है. एग्जाम्पल मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा, राइट? सो लेट्स सपोज इट इज गिवन
9 to the power 1 by 4 plus 8 to the power 1 by 6 to the power 1000. How many rational terms are possible in this expansion? Total number of rational terms in this expansion. So, pehle we have to write down in the base of 3 and 2. So, 3 to the power, right? 2 by 4, that's 1 by 2. And 2 to the power 1 by 2. Right? To the power 1000. राइट इतने टर्म्स मेरे पास है पहले तो बेस में मैंने लिख डाला 3 के एंड 2 के बेस में लिख डाला राइट एंड नाउ फॉर एनी टी आर प्लस 1 टर्म what is possible right possibility is 1000 cr 3 to the power 1 by 2 to the power 1000 minus r 2 to the power 1 by 2 to the power r right so both the powers are same so luckily we have 3 to the power 1000 minus r by 2 and 2 to the power r by 2. So r must be even, right? R must be even. तो जितनी बार ये इवन होगा उतने हमारे पास रैशनल टर्म्स आने चाहिए राइट तो टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कब कब होंगे 0 पर अगर r की वैल्यू 0 है 2 है 4 है 6 है एंड अप टू 1000 सो इस समय मुझे रैशनल मिल रहे होंगे राइट एंड उस समय टोटल नंबर होंगे रैशनल के 501 क्योंकि 0 से लेके मैं 1000 तक गया हूं सो दिस विल बी 501 यहां पर यही क्वेश्चन हो सकता है कितने इरैशनल वाले टर्म होंगे जो इन्वॉल्व होंगे इरैशनल के लिए वी नो दैट टोटल माइनस अगर मैं रैशनल कर दूं तो मेरे को इरैशनल टर्म्स मिल जाएंगे टोटल मेरे पास 1000 है राइट टोटल 1000 मेरे पास है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 था मेरे पास तो टोटल टर्म होंगे 1001 माइनस हमने 501 कर दिया तो टोटल हमारे पास इरैशनल टर्म्स हो जाएंगे 100 राइट एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू प्लीज नोट डाउन total number of rational and irrational terms. So these are the terms where we have to be. So the next question for you guys. Cube root of 3 plus root 2 to the power 108. Find total number of rational and irrational terms in this expansion.
Done. See, 3 to the power 1 by 3, 2 to the power 1 by 2, right? We have to see this in the case. This is 3 to the power 1 by 3 plus 2 to the power 1 by 2 whole to the power 108, right? So first thing what we are doing, write down any TR plus 1 term, right? So TR plus 1 term will be NCR 3 to the power 1 by 3 to the power 108 minus R into 2 to the power 1 by 2 to the power R, right? So what I'm getting is 108 minus R by 3 and R by 2 must be integer, right? सिंपल हमारे पास यही फंडा आ रहा है कि ये दोनों टर्म मेरे पास, राइट, ये और ये दोनों टर्म मेरे पास इंटीजर्स होने चाहिए, राइट? सो इंटीजर्स होने के लिए ऑब्वियसली आर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6, आर को मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए, राइट? अगर आर मेरा मल्टीपल ऑफ 6 होगा तो काम बन जाना चाहिए, राइट? आर मल्टीपल ऑफ 6 कितनी बार हो सकता है वो देखते हैं 108 में। 108 में मल्टीपल ऑफ 6 होने के लिए ऑब्वियसली 18 टाइम्स तो मेरे को दिखाई दे रहा है, बट हमेशा ये ख्याल रखना कि 18 टाइम्स हमारे को ये आने के बाद भी, क्योंकि हम लोग बाइनोमियल की बात कर रहे हैं एंड टर्म्स स्टार्टेड विद 0, राइट? सो अगर मैंने r को 0 रखा तब भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट? लेकिन डिविजिबिलिटी में वो टर्म नहीं आया होगा। उसके बाद 6 आया, उसके बाद 12 आया एंड लास्ट 108 आया। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 18 नहीं 19 होंगे, राइट? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे जो रैशनल मेरे पास हैं वो 19 होंगे रैशनल वाले। तो इरैशनल कितने होंगे? तो टोटल मेरे पास जो है वो ध्यान से देखो आप, तो टोटल आपको जो मिल रहे हैं यहाँ पर 109 मिल रहे हैं, राइट? 109 एंड 19 मेरे पास गिवन है जो रैशनल है। सो इरैशनल वाले मेरे पास कितने होंगे? 109 माइनस 19, राइट? तो 90 टर्म्स होंगे जो इरैशनल वाले होंगे। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। मेन है आपने पूरे फंडा में ये ख्याल रखना है कि इसे रैशनल होने के लिए हमें जो दो टर्म आ रहे हैं दोनों साथ में रैशनल होने चाहिए। तो r by 2 और r by 3 जो है दोनों के दोनों रैशनल होने का मतलब है r मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 6। ये r मल्टीपल ऑफ 6 जैसे होगा वहां से वर्किंग आपको अपने आप चली जाएगी आगे के लिए। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, आई गेस सबने नोट कर लिया होगा। Cube root of 5 plus 7th root of 2 to the power 24. Total number of rational term in this expansion.
Very good. This is simple one. See, first TR plus 1 term, 24 CR, 3 to the power 1 by 5 to the power 24 minus R, 2 to the power 1 by 7 to the power R. So we are getting 24 minus R by 5 and R by 7, right? अब वो टर्म मेरे को चाहिए जिसमें दोनों हमारे पास रैशनल वाले टर्म्स हो जा रहे हों एंड दोनों एक साथ में मल्टीपल साथ में काम कर जाए। 7 का मल्टीपल मैं कहूँ तो एक 7 है, 14 है, राइट, 21 है, इसके आगे के नंबर 24 से आगे ही चले जाएंगे, राइट। सो यू हैव टू सी कि 7 का मल्टीपल होने पर उसी समय उसे 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, राइट। 5 से भी 24 माइनस आर को डिवाइड होना चाहिए और दोनों ही केस को एक साथ में सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा जो नंबर मिल रहा है दैट्स 14। 14 में ये डिवाइड इससे भी कर ले रहा है एज वेल एज इससे भी डिवाइड कर ले रहा है, जो दोनों नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो जा रहे हैं, राइट। तो ओनली वन टर्म एंड टर्म है 15 एंड वैल्यू है 24C 14 3 to the power 2 into 2 to the power 2, something like this. So only one rational term possible, right? Now, next topic we are going to do is ratio of two consecutive binomial. अब अगर रेशियो ऑफ बाइनोमियल्स मेरे पास गिवन है, लाइक कहीं भी मैं पहले एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग कर ले, NCR अपॉन NCR minus 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, right? So everyone try to find out the value of this NCR upon NCR minus 1, right? ये वैल्यू जल्दी से फाइंड करके बताएं तो क्या आ रहा है ये? इसे याद भी रखना है आपको, इसलिए ख्याल रखेंगे। Best way to find this is just expand this factorial n upon n minus r का factorial into n का factorial n minus r plus 1 का factorial and r minus 1 का factorial, right? So factorial n cancel out. If r minus 1 and r factorial cancel out, you'll get r, n minus r, and this cancel out, n minus r plus 1. So you have to remember NCR upon NCR minus 1, right? NCR upon NCR minus 1 की जो वैल्यू आ रही है, this is simply n minus r plus 1 upon r, right? NCR upon NCR minus 1. So ratio of two consecutive terms, right? मान लेता हूँ मेरा एक्सपेंशन है x plus a to the power n के लिए, जिसमें tr plus 1th upon tr टर्म, ये दो वैल्यूज मेरे को निकालने हैं। tr plus 1th टर्म विल बी ncr, x भी आएगा एंड a भी आएगा, x to the power n minus r, a to the power r upon ncr minus 1, x to the power n minus r plus 1 into a to the power r minus 1. NCR upon this will be n minus r plus 1 upon r into a by x. Ratio of two consecutive terms.
डन, नोटेड एवरीवन। दो टर्मोलॉजी सीखने को मिले हैं, एक एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन की बात हो गई है, और एक अगर पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए बाई एक्स एक आ रहा है, वो भी मेरे पास हो गया है। ये दो हमारे पास वर्किंग के लिए बड़े अच्छे नंबर्स आ चुके हैं। इफ 3 consecutive terms coefficient of the expansion 1 plus x to the power n is 165, 330 and 462. Then find the number of term in the expansion. Maximum 3 minutes.
use the formula and try to solve this. The coefficients are there, na? Means you have not to take the x. Very good. Very good. See, three consecutive terms. Let's start with NCR minus 1. The first one, 165. NCR is the second one, 330. NCR plus 1 is the third one, 462. सपोज ये तीन टर्म मेरे पास गिवन है, राइट, एंड ये तीन को सॉल्व करने मेरे को, राइट. सो व्हाट वी कैन राइट if a second term given है, right, this was the formula, like when you have to use this. So from first and second, let this is first and this is second and this is third, from first and second. So
NC R minus 1 upon NC R is equal to 1 by 2, 165 by 330, 1 by 2, right? So with the formula, we know that this is R upon N minus R plus 1 is equal to 1 by 2, right? So 3R is equal to N plus 1, the first, right? Again, I'm using the second and the third one, right? So this is NCR अपॉन एन सी आर प्लस वन। यहाँ पर ये ख्याल पे रखना कि फॉर एवरी आर नाउ लाइक इन दिस फॉर एवरी आर यू हैव टू राइट डाउन आर प्लस वन। इस आर की जगह पर आर प्लस वन मैं रखूंगा तो दिस विल बी आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर इज इक्वल्स टू 330 462 5 by 7, right? So 7 plus 12R is equals to 5n minus 7, right? This is second prime. And first हमारे पास आ गया था, this is first prime, 3R is equals to n plus 1 is first prime, right? So obviously 3R, R cancel out, n we are getting as 11 and R is equal to 4. Right? So number of terms we required, so this will be 12. So this is the solution. कुछ ऐसे ही solution आपको हर बार जाने होंगे। मैंने zoom out कर दिया है, you can see this. Done. Right, done. So if third, fourth, fifth and sixth term in the expansion x plus y to the power n are respectively A, B, C, and D, then B square minus AC upon C square minus BD is equals to K times A by C.
Find numerical value k. Find numerical value k. k की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है.
Let's start with this. मैं स्टार्ट करता हूं. See, b square minus ac upon c square minus bd is equal to k times a by c, right? So our answer must be in the form of a and c, right? तो what I'm doing कि मैं ऊपर से a and b कॉमन लेता हूँ, right? न्यूमरेटर से a b मैं कॉमन लूंगा, right? So this will be b by a minus c by b. Similarly, ये नीचे से मैं b and c कॉमन ले लेता हूँ, d by c, right? So like in one step we are in game, right? एकदम पूरी तरह से हम लोग गेम पे आ गए. कैसे? क्योंकि a by c जो आना था वो आ गया. अब मेरे को केवल और केवल ये चाहिए कि b by a minus c by b इसकी वैल्यू एंड c by b minus d by c इसकी वैल्यू क्या आ रही है, राइट? सो लुक, this is for A, B, C, and D, right? Third term means this is NC2, fourth term NC3, NC4, NC5. So B by A, right? So NC3 by NC2 minus NC4 by NC3 divided by NC3, NC2, NC5, NC4, राइट? A by C हमारे पास है. जल्दी से केवल आपका ये वर्क है कि आप इन दोनों की वैल्यूज निकालें. ये कितना आ रहा होगा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला जो अभी मैंने दिया था. एंड सेकेंड, जो दूसरी वाले हमारे पास है, ये इसकी वैल्यूज निकालें विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला NCR अपॉन NCR माइनस 1. डू इट फास्ट. Calculate this. Do it fast. Do it fast. So NC3 by NC2, right? So you know the formula, n minus r plus 1 upon r, right? ये हमने जो फॉर्मूला यूज किया था, right, for NCR, NCR upon NCR minus 1, n minus r plus 1 upon r, right? The same formula we are using for this again, right? Minus
n minus 4 plus 1 upon 4 upon n minus 3 plus 1 upon 3 minus n minus 5 upon 5. a by c याद रखना, ये मल्टीप्लीकेशन पे है और गेटिंग दोनों कैंसिल हो रहे हैं मेरे पास, राइट। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट। कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहेगा एंड हाउ टू सॉल्व दिस, राइट। सो जितने डिवीजन वाले, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में भी गिवन है ना, उसको डिवीजन में लाने का अच्छा तरीका होगा, यू कैन टेक आउट द कॉमन। और बहुत बार ऐसा, यस वेरी गुड हरिप्रिया, कमिंग एट 4/3, राइट। सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया, समेशन k is equal to 1 to n k to the power 3 nck upon nck minus 1 the whole square, right? K cube into nck by nck minus 1 the whole square. K start from 1 to n. You have to find value of this. सेम फंडामेंटल यूज करना है, बट थोड़ा सा केयरफुल होते हुए। लुक, ये क्वेश्चन में भी जो मेरे पास गिवन है nck अपॉन nck minus 1, you know that this will be k cube into n minus k plus 1 upon k the whole square, the summation. And again k square cancel out, k into n plus 1 minus k the whole square. Expand कर लेता हूँ, this will be k cube minus 2 k square n plus 1 plus k into n plus 1 the whole square, right? And we know the summation of k cube is nothing but n plus 1 by 2 the whole square minus 2 into n plus 1 into n plus 1 2n plus 1 by 6 plus n plus 1 the whole square into n plus 1 by 2. You can take out n plus 1 by 2 common out and just write down the answer, right? It's on division, right? जब आपको डिवाइड करने हो एंड फॉर्मूला यूज करना हो तो ऑलवेज विल बी
Hope everyone is getting this. Okay, now look, next is divisibility on binomial. अब डिविजिबिलिटी के लिए वी नो दैट कि जब भी मेरे एक्सपेंशन होंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, वी नो दैट 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, एंड ये सो ऑन, दिस इज गोइंग ऑन, राइट. तो अगर मैं 1 और एन एन एक्स को कैंसिल करता जाऊंगा तो अकॉर्डिंगली विल गेट द सॉल्यूशन, हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग आते जाएंगे, राइट. सो क्वेश्चंस में बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे, एंड डिविजिबिलिटी के लिए भी हो सकता है, एंड थोड़े से यूनिट प्लेस के फाइंडिंग या 10th प्लेस की फाइंडिंग के लिए भी हो सकता है. दोनों चीजें वर्क कर सकती है. लाइक कैसे? लाइक इफ आई एम सेइंग फर्स्ट क्वेश्चन on this 3 to the power 4n plus 1 plus 16n minus 3 is divisible by 256 for any integer n. राइट, ये आपको प्रूफ करने हैं. Done. थ्री इंटू 3 to the power 4 to the power n plus 16n minus 3, right? ये given है. What we can write this 3 to the power 4 as 81. This is 80 plus 1, or 1 plus 80 to the power n plus 16n minus 3, right? When we expand this,
The expansion would be 1 plus 80n plus 80 into 80 minus 1 upon factorial 2, sorry, n into n minus 1 upon factorial 2, 80 square plus 16n minus 3. And this is something multiplication with 3. 3 cancel out with 3, and this will be 240, 256 n plus this is 80 into 80 by 2 is 40 n minus 1 and so on. Every term contains this. 256 is right, n into n minus 1 is one even term, right? So again we are getting 16 and 16 from both this. So 256 coming out from each and every term, right? So obviously for any value of n, we'll get 256 every time. Right? And 3 हमारे पास पहले से है ही. Hope everyone is getting this. Try second question on this. 11 to the power n plus 2 plus 12 to the power 2n plus 1 is divisible by 133. Divisible by 133. लास्ट क्वेश्चन में मैंने केवल कॉन्सेंट्रेट किया 1 प्लस 80 टू द पावर n पे. 1 प्लस 80 टू द पावर n को एक्सपैंड कर दिया, राइट? मुझे चाहिए 256, right? Means 16 square. 16 square is coming 2 times, right? 16 is coming 2 times. So now from first one, I'm getting 256. And from second one, right, we have to only concentrate for the power of 2 or power of 4 or power of 16. So 16 square, we are getting every time. Go for the second one.
सी 80 स्क्वायर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, राइट। 80 स्क्वायर जो वैल्यू हमारे पास है, तो दिस इज 16 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, राइट। 16 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 16 स्क्वायर इज 256। सो एवरी टर्म मस्ट कंटेन 256, एंड पहले के जो दो नंबर थे वो तो 256 थे ही मेरे पास, तो लाइक दिस मस्ट बी डिवाइडेड बाय 256, राइट। एंड दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने क्या किया, 11 स्क्वायर एन ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 11 स्क्वायर एक ले लिया, 11 टू द पावर एन, इसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, 12 पावर दे दिया, तो 12 स्क्वायर इज 144, राइट। 144 I am writing 133 plus 1 to the power n, and just expand this, right? So 11 to the power n, 11 to the power n, यहाँ से जो कॉमन आए दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आई एम गेटिंग 133। इसके अलावा जो नंबर्स आए उसमें सभी में 133 पहले से मेरे पास प्रेजेंट है, सो 133 आई एम टेकिंग दिस कॉमन आउट, सो आई एम गेटिंग 133 से डिविजिबल के केसेस। इज इट ओके एवरीवन? Okay, now, so one question for you. 6 to the power n plus 2 plus 7 to the power 2n plus 1 is divisible by 43. Divisible by 43.
राइट। सो 36 6 टू द पावर n, राइट, 6 टू द पावर n यहाँ भी मेरे पास है, राइट, एंड 43 तो पूरे टर्म्स में चले ही आ रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म 6 टू द पावर n की बात करूं तो दिस विल बी 36 प्लस 7, एंड उसके बाद के टर्म की बात करूं तो 7 इंटू nc1 इंटू 43 इंटू 6 टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। तो हर एक टर्म में दिस विल कंटेन 43, हर एक टर्म में 43 मेरे पास आएगा ही आएगा, एंड यहाँ भी 43 आ गए। सो ओवरऑल वी आर व्हाट वी आर गेटिंग 43 जो कॉमन आना था, तो वी आर गेटिंग 43 एज कॉमन वन। इज इट ओके? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी के हो भी गए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अब एक जो अभी मैंने स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर यूनिट प्लेस या 10 डिजिट या 100 डिजिट की भी बात होती है, 1000 प्लेस की भी बात होते हैं, राइट। सो बेसिक मैथमेटिक्स ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आएगी। अगर मैं जैसे कोई क्वेश्चन रखता हूँ, मान लो 17 टू द पावर 20 के लास्ट 2 डिजिट मुझे बताने हैं, तो ऑब्वियसली वी नो दैट कि कोशिश मेरी ये हो कि क्योंकि लास्ट 2 डिजिट बताने हैं या हमारे पास लास्ट 3 डिजिट बताने हैं, तो मैक्सिमम जितना जीरोज आ जाएगा या जीरो के आजू बाजू के नंबर आ जाएंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, राइट। तो 289 टू द पावर 10, तो 289 को मैं लिख सकता हूँ 290 माइनस 1 टू द पावर 10, राइट। अब एक्सपैंड करूँ 10 सी नॉट, राइट, 290 to the power 10, right, minus 10c1 290 to the power 9 plus 10c2 290 to the power 8 करते करते आखिरी में 10c10 290 to the power 0, राइट। तो इसके जस्ट पहले का टर्म क्या होगा? इधर से तो 10 जीरो तो यहीं पर भरे हुए हैं, राइट, 10 जीरोस पहले से भरे हुए, तो लास्ट में अगर मैं देखूं तो दिस इज कमिंग एज 1, राइट। इसके पहले का टर्म होगा वो माइनस में होगा 10c9, राइट, 290 टू द पावर 1, राइट। उसके पहले का टर्म जो होगा 10c2 290 टू द पावर 2, तो 2 जीरोज यहाँ पर आ गए हैं, तो राइट। सो अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इसमें 1 आएगा, इसमें एक 10 आ गया, इसमें दूसरा 290 आ गया, तो 100 हो गए। इसमें 2 जीरोज यहाँ पर पहले आ चुके हैं, राइट, 2 जीरोज यहाँ पर आ गए हैं 10c2 इंटू 29, राइट, 2 जीरोज यहाँ पर भी आ रहे हैं, इसमें 10 इंटू 9/2 एक टर्म ये भी आएगा, एंड 290 का स्क्वायर के टर्म आएंगे, मतलब 290 में 100 के साथ में ये टर्म यहाँ भी आ रहे होंगे। अब इसके बाद तो 3 जीरोज आ रहे होंगे मेरे पास, राइट। सो ये 1 माइनस 2900 यहाँ पर भी आ गया, एंड यहाँ पर भी जो भी नंबर आ रहे होंगे, राइट, 45 इंटू 29 स्क्वायर इंटू 100, राइट। सो लास्ट 2 डिजिट में मेरे पास -2 जीरो आ रहे हैं, यहाँ से +2 जीरोज आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव जीरोज एंड 1 जा रहा है मेरे पास, राइट। तो 001 मतलब 0 1 मेरे पास लास्ट 2 डिजिट की बात जो हो रही होगी, राइट। ये एंड ये प्रीवियस क्वेश्चन, ये दोनों आप देख लें। तो एक सिंपल फॉर्मेशन होगा, आपको कोशिश वही रखनी है 9 के आजू बाजू पर नंबर्स को लाएं। अगर वांट टू या फिर रिपीटेशन जो नंबर के होते हैं क्लास 10th में आपने जो पढ़ा हुआ था उस पर वर्क आप कर सकते हैं। Okay, okay everyone. So, few of the question on this, इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। First, 7 to the power 98 when divided by 5 leaves the remainder. Second, 53 to the power 53 minus 33
to the power 3 is divisible by 10. Third, 3 to the power 999 का last 2 digits. 3 क्वेश्चन. Very good, Snita. Very good, Naman. These are one of the simplest portion. बहुत फास्ट होना चाहिए सबके आंसर्स.
Go for the second one. Proof हो गया सभी का. And the third one. First one is the simplest one, right? कैसे? ध्यान दें. 7 to the power 9 we can write 49 to the power 49. 49 is nothing but 50 minus 1 to the power 49. When we expand this, each term contains 50 except the last term, and that will be minus 1, right? Minus 1, right? और हर एक में 50 है, so all the terms must be divisible by 5 except the last term, that's minus 5. But remainder must not be negative. Minus 1 नहीं होने चाहिए, so 5 minus 1 is equal to 4 is the remainder. Right? And second one is one of the simplest question I can say. We have to break this 53 to the power 53. We can write this as 33 plus 20 to the power 53 minus 33 to the power 3. Right? So दो टर्म मेरे पास आएंगे और सब तो 33 to the power 53 minus 33 to the power 3. और जितने भी टर्म होंगे उसमें 20 कंटेन कर रहा होगा, मींस मस्ट बी डिविजिबल बाय 20 और 10, राइट? नाउ अब यहाँ पर मेरे को ये मिल गया कि 33 टू द पावर 53 एंड 33 टू द पावर 3, ये दोनों का यूनिट प्लेस क्या आ रहा है उसी पर सब चीजें डिपेंड करेगी, राइट? तो यूनिट प्लेस यहाँ भी मेरे पास जो आ रहे होंगे, राइट, 3 विल repeat itself after a power of 4, तो दोनों में 3 आ रहे होंगे, so what we are getting is 0, right? So यहाँ भी 0 आ गया and 20 में हर एक में 0 आ रहा है, so this is divisible by 20 and 399. 3 to the power 999. मुझे चाहिए लास्ट 2 डिजिट, मतलब 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ रहा होगा, राइट? So what we can do, एक 3 मैं निकाल लूँ तो 3 to the power 998 हो जाएगा, right? Or we can write 3 to the power 9 to the power 499. So we can rewrite this as 10 minus 1 to the power 499, right? Expand करूँ रिवर्स से, राइट? रिवर्स से एक्सपैंड करने का फायदा क्या मिलेगा मेरे को? लास्ट टर्म -1 आएगा, राइट? उसके पहला टर्म जो आएगा 499 इंटू 10 का आएगा, उससे पहला टर्म आएगा 499C2 इंटू 10 स्क्वायर का आएगा, राइट? उसके पहले जितने भी टर्म होंगे उसमें 10 क्यूब का टर्म होगा, मतलब हर एक में 1000 आ रहे होंगे। मतलब आपको केवल और केवल कैलकुलेट करना रहा ये 3, राइट? एंड यहाँ तो बहुत सारे जीरोस पहले से भरे हुए हैं, राइट? 3 जीरोस वाले नंबर्स हैं या उसके आगे के नंबर्स हैं, राइट? 499 into 498 by 2 into 100 plus 499 into 10 minus 1. Or you can take out minus sign or you can calculate the numbers. Getting everyone? Right? Now, so एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया हुआ था, अगर याद हो, √2 plus 1 to the power 6 plus √2 minus 1 to the power 6, इसकी वैल्यू निकालनी थी, right? √2 plus 1 to the power, answer would be 67. √2 plus 1 and √2 minus 1 दोनों पे हम लोगों को निकालनी थी, राइट? तो इसकी वैल्यूज हम लोगों ने निकाली थी। फिर से एक बार जल्दी से निकाल के मेरे को दिखाएंगे तो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 plus 1 to the power 6 plus √2 minus 1 to the power 6, इसकी वैल्यू क्या आ रही है?
वेरी गुड, वेरी गुड वैष्णवी। ये याद होगा, ये आई थी 198 ना, पहले भी आपने किया होगा ये क्वेश्चन को, राइट। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लेट r इज इक्वल टू √2 + 1 to the power 6। अब ये जो r है इसमें इंटीग्रल पार्ट भी है और कुछ फ्रैक्शन पार्ट भी है, क्योंकि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, √2 + 1 भी होगा, वो भी इर्रेशनल होगा, और उसका पावर 6 कर दिया तो इर्रेशनल ही रहने हैं, राइट। यहाँ पर दो पार्ट में हमारा क्वेश्चन डिवाइड हो गया है। एक पार्ट है जो इंटीग्रल पार्ट है और दूसरा पार्ट है जो फ्रैक्शन पार्ट है। सो लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग कि यही जो हमारे पास 198 आया था, जो r मेरे पास गिवन है, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट। तो यहाँ जो हम लोग थ्योरी करने जा रहे हैं, दैट्स फॉर इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर्स ना, टॉपिक यही लिखना, राइट, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल ऑफ द नंबर्स। सी क्या होगा, कहानी क्या है, इसको समझिए। हमने एज्यूम कर लिया जो गिवन है वही हमारे पास ट्रू है, √2 + 1 to the power 6 ये है। अगर मैं केवल √2 - 1 to the power 6 लेता तो क्या होता, राइट। √2 - 1 to the power 6 क्या होता, √2 - 1 जो है वो एक नंबर होगा जो लाइक 1 और 2 के बीच में आ रहा होगा, √2, एंड -1 कर दिया तो ये नंबर 0 से 1 के बीच में आ रहा, और जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैल्यूज कम होती जाएगी। सो दिस नंबर व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पर जो नंबर मेरे पास आ रहा है ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, राइट। तो इसको हमने एक नया फ्रैक्शन एज्यूम किया और इस फ्रैक्शन को हमने नाम दे दिया, लेट दिस इज कैपिटल F। ये फ्रैक्शन भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, बट दोनों डिफरेंट फ्रैक्शन है, मे बी सेम भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हमने दोनों को बोला कि अलग अलग फ्रैक्शन है। फर्स्ट वन √2 + 1 to the power 6 से एक फ्रैक्शन आया है, सेकंड हमने अपने तरफ से अज्यूम किया √2 - 1 to the power 6 से एक फ्रैक्शन आया है। अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूँ, राइट, ये दोनों जो मेरे पास इक्वेशन है दोनों को ऐड करूँ तो √2 + 1 to the power 6 प्लस √2 - 1 to the power 6 की वैल्यू आएगी I + F + F। ये ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये पूरा डिपेंड इस बात पर करेगा, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या करना है ये पूरा इस पर डिपेंड करेगा कि इसकी इररेशनलिटी मैं कैसे कैंसिल आउट करता हूं और मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो इंटीजर कैसे आ रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा मेरे को ऐड करना है, कभी हमें सब्ट्रैक्ट करना भी हो सकता है जब पावर मेरे ऑड हो रहे हों और माइनस में उसे कैंसिल करना हो, राइट। आगे के क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा ना। अब यहाँ जो मेरे पास आ गया है इसकी वैल्यूज अभी तुरंत बात हुई थी, हमने निकाला हुआ था 198 इक्वल टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन ये आ गई। बट वी नो दैट जो भी फ्रैक्शन है वो 0 से 1 के बीच में ही होगा, ना ही 0 पर क्लोज होगा ना ही 1 पर क्लोज होगा, 0 1 दोनों ही तरफ से। कैपिटल F भी 0 से 1 के बीच में होगा, यहाँ पर दोनों पर ही फिर से ओपन ब्रैकेट होंगे, क्योंकि ना तो ये 1 हो सकता है कभी, ना तो ये 0 हो सकता है। अब अगर एक f है जो 0 से 1 के बीच में है, दूसरा f है वो भी 0 से 1 के बीच में है, राइट। यहाँ तक पहले आराम से नोट करें, सोचें, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। ओके, सो अगर दोनों फ्रैक्शन मेरे पास हैं एंड इफ आई एम एडिंग बोथ द फ्रैक्शन,
राइट, वी आर एडिंग बोथ द फ्रैक्शन, वेरी गुड। एफ प्लस एफ की जो वैल्यू होगी वो 0 से 2 के बीच में होनी चाहिए, राइट। एफ प्लस एफ की वैल्यू है 0 से 2 के बीच में होनी चाहिए, बट फॉर्चुनेटली एक अच्छी बात क्या है हमारे लिए कि f प्लस एफ यहाँ जो आ रहा है ये i पहले से इंटीजर है, 198 भी इंटीजर है, मतलब f प्लस एफ जो वैल्यू होगी वो भी एक इंटीजर ही होनी चाहिए। सो f प्लस एफ इंटीजर है, तो f प्लस एफ इंटीजर होनी चाहिए। तो f प्लस एफ 0 से 2 के बीच में है एंड हमेशा इंटीजर होगा। कैसे पॉसिबल, क्या वैल्यूज हो सकती है? सो 100% वी कैन से कि f प्लस एफ की वैल्यू 1 होगी। अब f प्लस एफ की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी तो i जो है वो 198 माइनस 1 होगा, जो 197 होगा। मतलब i जो है वो ऑड इंटीजर आ रहा है एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 197। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। बट मैंने कहा प्लस या माइनस करना है, ये डिपेंड पूरी तरह से इस पर करेगा कि मेरे को जो आंसर चाहिए या जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उसमें कैसे इररेशनलिटी खत्म होके मेरे को आंसर्स आ रहे हैं। Done everyone? Done everyone? जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करूं मैं। राइट, ये गिवन है, इसका इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू गिवन है। राइट, इसमें क्या कमेंट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, आप सोचें। इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा? फ्रैक्शन जो आएगा वो मेरे पास क्या हो रहा होगा, क्या वर्किंग हो रही होगी, थोड़ा सा सोच के देखें, फिर मैं बताता हूँ। मैक्सिमम 30 सेकेंड।
सी अब ये क्वेश्चन में जो मेरे पास गिवन है √5 प्लस 11 एंड ऑड मेरे पास पावर गिवन है, राइट? सो राइट, सेकंड आई एम टेकिंग दिस एज 5√5 माइनस 11 टू द पावर 2n प्लस 1। ये एक और कोई नया फ्रैक्शन होगा क्योंकि 5√5 माइनस 11 0 से 1 के बीच की वैल्यूज ही होगी, राइट? अब इसमें मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? अगर मैं ऐड करता हूं तो 5√5 टू द पावर 2n प्लस 1 हर एक टर्म में अपने आप आ रहा होगा, जो मेरे को इररेशनलिटी देता जाएगा, जो सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो इन दिस केस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ दिस, राइट? इसलिए जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया था। तो ये 5√5 प्लस 11 टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 5√5 माइनस 11 टू द पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू आई प्लस एफ माइनस एफ, ये आएगा। एंड ये जो मेरे पास यहाँ आ रही है टर्म, ये जो टर्म मेरे पास आ रहे हैं, राइट, इसके बारे में मैं श्योर हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कैंसिल होने के बाद जो भी आया होगा वो ट्वाइस ऑफ सम इंटीजर आ रहा होगा, जिसको मैंने आई नॉट बोला। ट्वाइस ऑफ सम इंटीजर इज इक्वल टू आई प्लस एफ माइनस एफ। अब एक बात बताओ, फ्रैक्शन जो है वो 0 से 1 के बीच में है, कैपिटल फ्रैक्शन भी जो है 0 से 1 के बीच में है, राइट? अब ये दोनों अगर 0 से 1 के बीच में है तो जल्दी से आप चैट में लिखो इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आप मतलब चैट में आप 1 2 0 1 0 0 आप ऐसे लिख सकते हो, राइट? सो एक फर्स्ट वाला मिनिमम एंड सेकंड वाला मैक्सिमम होगा, राइट? डू इट फास्ट इन चैट। Very good, Manas. Kevin, very good. Jabal, very good. Anushka, very good. Naman, very good. See, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ये ख्याल पे रखो कि अगर दो इनइक्वलिटीज आपको गिवन है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हुए मिनिमम आपको निकालने हैं वैल्यूज, राइट? मान लो अगर a है 0 से 1 के बीच में, b भी है 0 से 1 के बीच में, a माइनस b आपको चाहिए और इसकी मिनिमम चाहिए। मिनिमम होने का मतलब है जब a मिनिमम होगा और b मैक्सिमम होगा। a मिनिमम और b मैक्सिमम मीन्स -1, और मैक्सिमम का मतलब है a मेरा मैक्सिमम होगा और b मेरा मिनिमम होगा। आई गेस लॉजिकल तरीके से आप सबके पास आसानी से काम होगा ये ना। अगर आपको a माइनस बी का मिनिमम निकालना है तो ऑब्वियसली a मिनिमम b मैक्सिमम, a माइनस बी का मैक्सिमम निकालना है तो ऑब्वियसली a मैक्सिमम b मिनिमम। सो f माइनस f की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट लाइज बिटवीन -1 to 1 बोथ ओपन, राइट? अब -1 से 1 बोथ ओपन की बात हो रही है, मतलब f माइनस f जो होगा वो एक ही काम हो सकता है, वो 0 हो जाए, राइट? अब अगर f माइनस f 0 हो गया मतलब 2i0 इज इक्वल टू i, ये एक इवन इंटीजर आएगा, इस बार ये ऑड नहीं होगा। तो क्वेश्चन दोनों तरह से फ्रेम हो सकते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल, राइट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सीरीज के क्वेश्चन करेंगे एंड ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म करेंगे। तब तक आप अपने मॉड्यूल शुरू कर सकते हैं जिसमें सीरीज वाले क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये दो को छोड़कर और सब क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आप स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। इस मतलब फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। Anyone